Assalamu alaikum. My name is Mohammad Ali Riza and I am speaking from the platform of Concepto Chemistry. Today our topic of discussion is what is the scope of electrical engineering, and we will also discuss many other things about the electrical engineering. And for that session, the icon of electrical engineering, only Mr. Ahmed Khalid has joined us. So first I would like to thank Mr. Khalid that he gets some leisure time from his busy routine and is joined his session. Thank you so much, Ali Riza, for the invitation. And I'm very glad that I am the part of such an informative session. And I really wish that this session will go in the great interest of the students, Inshallah, inshallah. inshallah. So first, let me to introduce Mr. Ahmed Khalid. He has done his engineering from one of the prestigious universities of Pakistan, UET Lahore, and his final year project was on artificial intelligence based, and it is the most interesting thing about his introduction. And he get first position out of 40 plus projects in his department at UET Lahore, and he have more than 2 years of experience in his electrical engineering field, and he has worked in RobKits as machine learning engineer and as a research assistant in Kix, and currently he is providing his services with US based company Orblogic. So अब हम सेशन को प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं. First tell me, Mr. Ahmed Khalid, about your final year project, that what was it actually? All right. So my final year project was sign to speech conversion for the dumb people. So basically, I had this idea from our advisor named Dr. Kashi Javed. He gave us idea for the first time that you should develop a device for the mute people and the deaf people, because usually the normal people do not understand the sign language, and the deaf and mute people usually communicate with each other in the sign language because obviously they cannot speak. So therefore, you should make a device, or you should work on a project which can eradicate the communication gap between the normal and these people. So then we started work on it, and in the initial stages we have to face so many problems, and we struggled a lot because that was a totally new things for us, and we have to also add the element of the AI in our project along with the other electrical things as well. So yeah, we struggled a lot, but then Alhamdulillah, we go through it, and we have made it. And we have collected almost 3,000 plus samples, which are correct samples. The discarded samples but we have collected almost 3,000 plus corrected samples from the different peoples, and then we train our classifier about the Great. gesture recognition, and then we deploy in our glove, which has a specific circuit, a signal processing circuit that I have designed. And then we have also tested on the actual deaf and mute people, and the results were really great. It was featured on Sama News, Dunia News, Independent Urdu, and on Pro Pakistani. That's great. ओके. सो अब हम आते हैं आपकी फील्ड की तरफ, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है. उसके रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चन करेंगे. सो Yes, I'm आर ready. यू रेडी? ओके. डू यू थिंक स्टूडेंट शुड कम टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या इसको मैं इस तरह कहूँ कि स्कोप ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है? सो इसके बारे में आप गाइड कर दें. अच्छा, जहाँ तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड की बात है, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक बहुत वास्ट फील्ड है। ये इसमें बहुत से एरियाज जो हैं वो कवर होते हैं। जब आप आगे अपनी फील्ड में जाते हैं तो आपको इससे रिलेटेड बहुत से काम जो हैं वो मिल जाते हैं। इनिशियली मैं ये कहूँगा कि अगर हम पाकिस्तान की डायनामिक्स देखें तो पाकिस्तान में जो पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर जिसमें ये ट्रांसमिशन लाइंस का काम आ जाता है और ये ग्रिड स्टेशन और ये सारी चीज़ें, तो इनका जो काम है वो ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में है, यानी गवर्नमेंट जॉब्स हैं इसकी। और इसके अलावा अगर आप जाते हैं ये कंप्यूटर वाली फील्ड में, तो जिसमें आपको ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला काम हो गया, कंप्यूटर वाला हो गया, तो इसका काम जो है वो आपको प्राइवेट सेक्टर्स में भी मिल जाता है।
यूजुअली होता ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सही है। साथ कि इसमें जब आप फाइनल ईयर में जाते हैं तो आपके पास खास तौर पे मैं यूईटी की अगर मैं बात करूं तो यूईटी में आपको 3 मेजर्स मिलते हैं, जिसमें एक पावर सिस्टम आपको मेजर्स अपना रखना पड़ता है, एक आपको कंप्यूटर्स का रखना पड़ता है जिसमें साथ आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ जाती है, और तीसरा जो होता है वो आपका एंटेना सिस्टम होता है। तो पावर सिस्टम का अगर आप जॉब मार्केट में जाते हैं तो उसमें यूजुअली आपको जॉब मिलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि जो पावर सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्राइवेट लेवल पे इतने ज़्यादा वो अफोर्डेबल नहीं होते। ज़ाहिर बात है, प्राइवेट कंपनीज इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती, तो गवर्नमेंट लेवल पे जो हैं वो पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो उनमें जब कोई जॉब्स वगैरह निकलती हैं तो फिर ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हायर होते हैं। मेरे काफ़ी जो दोस्त हैं, मेरे फेलोज जो हैं वो लेस्को वगैरह में और डिफरेंट जो हमारी डिस्कोज हैं उसमें एसडीओ वगैरह लगे हुए हैं, कहीं और भी पावर सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इफ यू आर कमिंग टू द पावर सेक्टर, आप ग्रेट। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस वजह से आ रहे हैं कि आप आगे पावर सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप आते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, कंप्यूटर वाले सेक्टर में जी। आते हैं, तो उसमें जो है आपको इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप कंप्यूटर के मेजर्स साथ पढ़ते हो, आपको सॉफ्टवेयर कोडिंग का अंदाज़ा होता है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब प्लेसमेंट जो है आपको जल्दी मिल जाती है। और उसमें आपके ग्रो करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसकी जो इंडस्ट्री है वो बाहर भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और है। बाकी अगर आप ये अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अब्रॉड में तो खैर हर चीज़ का ही है वो स्कोप है, लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब इसमें तीसरी फील्ड रह जाती है रडार रडार सिस्टम डिज़ाइन की, ठीक है, जो कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ आपने डील करना होता है। तो वो बेसिकली अभी तक यहाँ तो आप ये ज़ोंग और ये जैसे टेलीकम्युनिकेशंस की कंपनीज़ हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ बिल्कुल जो रिसर्च एरिया होता है, क्योंकि इस एरिया में बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो ये एक पूरा एक मैंने आपको इलेक्ट्रिकल का एक मैंने ब्रेकडाउन आपको करके दिया। स्कोप वाइज़ अगर मैं आपको ये कहूँ, पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब वाइज़ सही। अगर आप बात करते हैं तो उसमें मैं यही कहूँगा कि जो कंप्यूटर्स के साथ जो हैं वो ज़्यादा सिक्योर रहते हैं। जबकि अगर आप पावर सेक्टर की बात करें तो उसमें आपको मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और वेट भी आपको ज़्यादा करना पड़ता है। सही है। सो मेन आइडिया ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल में जाते हैं तो उसमें स्पेशलाइजेशन में कंप्यूटर को चूज़ करें, क्योंकि वैसे भी कंप्यूटर का ये दौर चल रहा है और आने वाला भी कंप्यूटर का ही दौर होगा। तो इससे हुँ, बेनिफिट हुँ। ये भी है कि आपको कंप्यूटर से होना हुआ है और आपकी स्पेशलाइजेशन भी उसी में हुँ, ही हुँ। है। ऐसा ही है। हाँ, मैं इस वजह से कि जब मैंने एडमिशन लेना था यूईटी के अंदर, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो है वो इतना स्कोप नहीं है जॉब मार्केट में, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैंने पहले से ही बिल्कुल। डिसाइड किया था कि आई विल गो विद द कंप्यूटर मेजर्स रादर देन पावर। तो गुड। चीज़ें दोनों गलत बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैसा है और आपके अंदर पेशेंस कितना है। अगर आप हार्ड वर्किंग बिल्कुल। स्टूडेंट हैं, आपको इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे तरीके से याद हैं और आप मेहनत करने वाले आदमी हैं, ऑब्वियसली आपकी जॉब प्लेसमेंट जो है वो बड़ी इजीली हो सकती है। आप हर तरह की अपॉर्चुनिटी इसके लिए ओपन रहें। बाकी अगर आप कंप्यूटर मेजर्स के साथ आते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ये होता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हार्डवेयर का भी काम आ रहा होता है, यानी एम्बेडेड से रिलेटेड वो भी उसे चीज़ों को पता होता है। इसके अलावा उसे सॉफ्टवेयर कोडिंग का भी पता होता है। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है किसी भी इंडस्ट्री को अडॉप्ट करने की। जिसकी वजह से सही। जो है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को मेरी पर्सनल थॉट के मुताबिक एक आम सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज़्यादा एज होता है इंडस्ट्री में। गुड। सही हो गया। हम्म। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट आर स्किल्स या स्किल्स के साथ सॉफ्टवेयर्स भी दैट शुड गेट एंड कैन अर्न ऑन फ्रीलांसिंग एंड हेल्पफुल टू गेट जॉब आल्सो। मतलब कि कौन से स्किल्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर गेन करके एक तो फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हैं और वही स्किल्स जॉब को गेन करने के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं ये समझता हूँ कि आजकल के दौर में जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जॉब सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा। आप देखें, बेरोज़गारी का इफ़ेक्ट सिर्फ आप इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं कह सकते, हर फील्ड में जो है
बिल्कुल है, बेरोज़गारी है तो ज़रूर है, ले इसमें ये होता है कि फिर आपका कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस दौर में मैं ये समझता हूँ कि फ्रीलांसिंग एक नेमत है और एक अच्छी चीज़ भी है कि आप अपना जो टैलेंट है, जो अपना स्किल है, वो आप एक्सपोर्ट करें एक लिहाज़ से और ऑब्वियसली जो बिल्कुल बाहर के जो क्लाइंट्स हैं, वो आपको अच्छा पे रेट देते हैं। यानी वो बिल्कुल दे पे ऐसे। यू रियली वेल, आपका बड़ा अच्छा गुज़ारा हो जाता है और ऑब्वियसली अभी भी आपने रिपोर्ट देखी होगी कि जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तान का जो पाकिस्तानीज़ का जो एक इंटरेस्ट बढ़ा है हमारे इसमें पाकिस्तान में जो हमारे पास रेमिटेंस की सूरत में जो इस रिकॉर्ड जो है वो पैसे आए हैं रेमिटेंस की सूरत में ही सिर्फ। तो ऑब्वियसली वो ये फ्रीलांसर्स में भी उनका कुछ ना कुछ शेयर उसमें जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा शेयर जाता है। तो मैं उसमें यही कहूँगा कि बिल्कुल ऐसे। कोई भी एक इंजीनियर जो होता है उसके अंदर उसका एक इंजीनियरिंग वाला एप्टीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता होना चाहिए, आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इंजीनियर्स जो हैं वो आगे जॉब जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो एज ए मैनेजर्स भी जो हैं वो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, एज ए मैनेजर्स भी वो काम कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तभी आइए जब आपको इसमें दिलचस्पी हो। इस तरह करके बिल्कुल भी ना आए कि ये बहुत मुश्किल है सही। तो कुछ हो जाएगा या इसलिए भी ना आए कि यार ये टॉप ऑफ द मेरिट में लिस्ट में है तो मैं तो आगे जॉब लग जाएगी। बिल्कुल इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि यू कैन डू समथिंग इन द फ्यूचर, देन यू शुड कम टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और दूसरा ये कि अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप सही है। रिवाइज करते रहें, ठीक है? उसको आप किसी भी तरह कोई प्रैक्टिकल मॉडल में जो है उसको यूज़ किया करें अपने कॉन्सेप्ट्स को। और अब दूसरा ये कि ड्यूरिंग योर अंडरग्रेड हमेशा जो इंडस्ट्री के लोग हैं और अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ हम हमेशा राब्ते में रहा करें, उनसे पूछा करें कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। बाकी जहाँ तक स्किल्स की बात है तो उसमें मैं बिल्कुल। इनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को मैं ये लाजमी कहूँगा कि अपनी कोडिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी करें क्योंकि आगे मार्केट में अगर आप जाते हैं इवन और कंप्यूटर स्किल्स भी जो सॉफ्टवेयर स्किल्स अब होगा, आप मार्केट में जाते हैं, आप बेशक पावर सेक्टर में काम करते हैं या आप कंप्यूटर सेक्टर में किसी भी सेक्टर में आप काम करते हैं तो इंजीनियर का काम प्लानिंग में होता है तो उसमें जो सिमुलेशंस वगैरह करनी होती है वो इंजीनियर्स की साइड पे होती हैं, तो इसमें आप इनको बहुत ज़्यादा जो हेल्प मिलती है। इंजीनियर्स को जो है वो पीसीबी डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर ज़रूर सीखने चाहिए। यूजली प्रोटियस यूज़ होता है लेकिन प्रोटियस जो है वो एक पेड सॉफ्टवेयर है, यूनिवर्सिटी लेवल तक तो आपको ज़रूर वो आपको मिल जाता है, एक्सेस मिल जाती है, लेकिन जब आप कमर्शियल लेवल पे आगे प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, तो उसमें आपको प्रोटियस जो है वो यूज़ करना ज़्यादा महँगा पड़ जाता है। एथिकल वे में मैं आपको बात बता रहा हूँ, पर मैं बिल्कुल भी पायरेसी को मैं एंडोर्स नहीं करता और मैं बिल्कुल इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो आप पायरेट करके यूज़ करें। उसके लिए मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप ईज़ी ईडीए है एक वेबसाइट है, आप वो ज़रूर यूज़ करें। उस पे आप पीसीबी डिज़ाइनिंग ज़रूर सीखें। पीसीबी डिज़ाइनिंग की बहुत अच्छी नीश जो है और उसका अच्छा पे रेट आपको मिलता है इस पे डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे। दूसरा कोडिंग स्किल्स जो हैं दोनों एम्बेडेड की भी कोडिंग और जो आम आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग होती है वो आप बेहतर करें। रोबोटिक्स में अपने आप को बेहतर करें। इसके अलावा पावर सिस्टम्स के जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं जिसमें एलटी स्पाइस वगैरह हो गया या मल्टी सिम हो गया, तो ये इनको आपको जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से सीखना चाहिए, सर्किट डिज़ाइनिंग आपको आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको लाज़मी तौर पे सीखने चाहिए। सही हो गया, ठीक। सो मेन आइडिया इसका मतलब आपने ये बताया, अगर आपका इंटरेस्ट है रोबोटिक्स में या इलेक्ट्रिकल फील्ड से टच रखता है आपका इंटरेस्ट, तो फिर आप आए। ये ना देखें कि यूटी लोअर में टॉप मेरिट पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो उसका मतलब है इसके इसका स्कोप ज़्यादा है। तो हुँ, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस तरफ ना आए। अगर आपका इंटरेस्ट ऐसी फील्ड में है जो कि लो मेरिट में है तो आप हुँ। उसमें जाएं। आप उसमें ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दैट कि जिसका मेरिट सबसे ज़्यादा और आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हाँ जी, एग्ज़ैक्टली। अब मैंने अपने कई ऐसे फेलोज़ को देखा है जो कि सीआरपी या जियोलॉजिकल वगैरह करके गए हैं, तो दे आर गेटिंग वेरी गुड सैलरी और वो बहुत अच्छा जो है वो कमा रहे हैं और द थिंग इज़ कि उनको शौक था, वो अपनी फ़ील्ड के साथ सिंसियर थे। और दूसरा, अब अगर जॉब मार्केट भी देखें तो देखें
कोई भी इंडस्ट्री है ना, वो इस बेस पे किसी भी बंदे को हायर नहीं करेगी कि भाई इसका अच्छा टॉप मेरिट लिस्ट में था, जो चलो भाई आ जाओ, ऐसे नहीं होता। उन्होंने ये देखना होता है कि वो बिल्कुल। बंदा कितना फिट है हमारी इंडस्ट्री के लिए। तो ऑब्वियसली वो वही बंदा उनकी इंडस्ट्री के लिए फिट होगा जिसको अपनी फील्ड में इंटरेस्ट होगा, अपनी फील्ड के साथ सिंसियर होगा, उसे अपनी फील्ड का कुछ पता होगा। वो चाहे फिर आपको इलेक्ट्रिकल का पता जाए। हो, सिविल का पता हो, मैकेनिकल का पता हो, आपको जॉब इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। एक बात याद रखें, इफ़ यू आर अ स्किलफुल पर्सन, अगर आपके हाथ में हुनर है तो आप भूखे नहीं रह सकते। ये मेरा आपसे वादा है, आप बिल्कुल भूखे ऐसे। नहीं रह सकते अगर आपके हाथ में हुनर है। बिल्कुल ऐसे ही। सो मिस्टर अहमद, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैन फ्रेश ग्रेजुएट्स वर्क इन फॉरेन कंट्रीज और विद फॉरेन कंट्रीज? क्या ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के ग्रेड होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज में जाकर जॉब कर सकते हैं फ्रेशली, या पाकिस्तान में ही रहते हुए फॉरेन कंट्रीज के साथ मिलकर काम कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए एक तो आपकी जो पीआर है, मैंने अगेन आपको बताया कि आपकी जो पीआर है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ख़ास तौर पे उन सीनियर्स के साथ जो कि जॉब बाहर जॉब कर रहे हैं या बाहर एज ए मास्टर्स या पीएचडी वगैरह के लिए पढ़ने गए हुए हैं। बाहर जॉब सिक्योर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि वो आपकी प्रोफ़ाइल बड़ी अच्छी माँगते हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के उसमें बात करूँ उसके पर्सपेक्टिव से, तो उसमें वो देखते हैं कि इसकी ओपन सोर्स कम्युनिटी में इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, और इसके अलावा जो कोडिंग के कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं उसमें इनकी क्या जो है वो परफॉर्मेंस रही है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी ये कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिल्कुल अवेलेबल हैं, रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, ख़ास तौर पे यूएस में जो हैं, यूएस, यूके वगैरह में जैसे ममालिक में जो हैं रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो उनको सर्च आउट करना पड़ता है, देखना पड़ता है। ख़ास तौर पे पीआर अगर हो तो आपका काम जल्दी हो जाता है, तो उस सिलसिले में आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। बाकी ये कि अगर आप अपनी प्रोफाइल बेहतर बिल्कुल करते रहें, और मैं यही मशवरा दूंगा ऐसे। कि आप जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह करें, आपकी कोई भी अगर अगर कोई टेक्निकल फील्ड्स से अगर आपको कोई अचीवमेंट मिलती है तो उसको ज़रूर पोस्ट किया करें अपने लिंक्डइन में, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में। ठीक है, ताकि लोगों को पता लगे कि आप अपनी फील्ड में जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी जितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पब्लिश हुई होंगी, उतना ज़्यादा आपको बायर का चांस जो है वो अच्छा आपको मिलेगा। बाकी आप रिसर्च पेपर्स जो हैं वो लिखना शुरू कर दें। ऐसी बात बिल्कुल भी बिल्कुल। नहीं है कि आपने अगर मास्टर्स या पीएचडी नहीं कर रहे तो आप पेपर नहीं लिख सकते। आप पेपर बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने इवन एफआईपी लेवल पे जो है अपना एक रिसर्च पेपर पूरा जो है अपना एफआईपी का हमने लिखा था। तो बैचलर्स लेवल पे आप बिल्कुल जो है बैचलर्स के बाद आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन करके ग्रेट। आप ज़रूर जो हैं वो रिसर्च पेपर्स लिख सकते हैं, उसको पब्लिश करवा सकते हैं, और इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, और आप बाहर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो जॉब जो है वो आप सिक्योर कर सकते हैं। गुड। ये सर्च पेपर वाली तो मेरे लिए भी बात एक न्यू ही है, कि मैं खुद इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे बिलीव करता था कि जो एमएस करते हैं या जो पीएचडी करते हैं वही रिसर्च पेपर को पब्लिश करवा सकते हैं। तो ये आपने मेरे लिए भी एक मतलब कि वैल्यू ऐड कर दिया कि ग्रेजुएट्स भी अपनी डिग्री के दौरान पेपर बिल्कुल, पब्लिश आप करवा सकते आर्टिकल्स हैं। वगैरह लिखें, आप जर्नल्स वगैरह लिखें, नहीं। अपने आप रिसर्च पेपर, आप किसी भी प्रोफेसर के साथ आप बात वगैरह करें, उनको उनके साथ आप जॉइंट प्रोजेक्ट्स करें, तो यू कैन रियली पब्लिश अ पेपर विद देम। बिल्कुल आप कंपनी के साथ कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में ऐसे काम ही है कर भाई। रहे हैं और आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, यू कैन टॉक विद योर कंपनी, और आप कंपनी को अपने एतमाद में लेते हुए आप रिसर्च पेपर, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप देखें तो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या NVIDIA, दे आर बेसिकली कंपनीज, सो दे लेकिन वो भी रिसर्च पेपर्स जो हैं वो अपने पब्लिश करती हैं। वो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं पब्लिश होते, वो खुद बिल्कुल पेपर जो है वो पब्लिश करते हैं। तो आप अपना पेपर जो है वो ऐसे ही आप है। पब्लिश बिल्कुल करवा सकते हैं, आप ब्लॉग्स आर्टिकल्स वगैरह लिख सकते हैं। सही है। अच्छा मिस्टर अहमद, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द एरियाज वेयर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैन वर्क? कौन कौन से फील्ड्स हैं, कौन कौन सी साइट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ग्रेजुएट होने के बाद जॉब कर सकता है? हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंडस्ट्री में इसकी जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसका एरिया बहुत वास्ट है। बिल्कुल। अब अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो यू कैन वर्क इन द ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक है, आप ट्रांसमिशन लाइंस की डिज़ाइनिंग में वर्क कर सकते हैं, उनका ओन फील्ड में वर्क कर सकते हैं। लोड फोरकास्टिंग में वर्क कर सकते हैं कि आने वाला लोड क्या होगा।
इसके अलावा आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे कि ये लेस्को हो गया और फेस्को हो गया, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, एज ए एसडीओ काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप जनरेशन पावर प्लांट्स पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उसका ताल्लुक जो है वो इलेक्ट्रिक मशीनरी वगैरह से होता है। इंडस्ट्री में एज ए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर काम कर सकते हैं, जैसे कि एंग्रो हो गया या फातिमा सही। फर्टिलाइजर्स हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको पावर से रिलेटेड जो है वो फील्ड बता दी, इसमें कंप्यूटर वाले सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर की ग्रेट। बात करते हैं, इफ़ यू हैव मेजर्स विद कंप्यूटर, तो आप एक एम्बेडेड इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, एम्बेडेड सर्किट की, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह सकते हैं, चिप डिज़ाइन, चिप वेरिफिकेशन में। अभी आजकल एम्प्रोमेलन जो है उसने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया हुआ है। दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन चिप वेरिफिकेशन। वो लोग पाकिस्तान के अंदर रिस्क 5 आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप कर रहे हैं और उस पर बड़ा अच्छा काम सही। कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कैन गो देयर एज वेल। और इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर काम कर सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ काम कर सकते हैं, आप इवन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जा सकते हैं, जो एक बिल्कुल दैट्स ग्रेट। एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, आप बिल्कुल उसके अंदर जा सकते हैं। आप एआई के अंदर जा सकते हैं, कंप्यूटर विजन के अंदर जा सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इस तरह की चीज़ों में जा सकते हैं। बाकी अगर आप उसमें एंटेना सिस्टम में आप देखते हैं, तो आप उसमें इसमें ये पीटीसीएल के अदारों में या जोंग वगैरह में, कहीं भी जहाँ पे टेली कम्युनिकेशन का काम हो रहा है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का एक बहुत वास्ट जो है वो फील्ड इनकी बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसके अलावा आप एज ए कंट्रोल इंजीनियर जा सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर। ये आपने देखा होगा, एक बड़ी वैसे छोटी सी एग्जांपल है वो, जो जिस पे वो बैलेंस करके जो है आप व्हील खुद ही बैलेंस करता है, जिस पे आप, मुझे उसका नाम नहीं आता फिलहाल। ऐसे। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल इंजीनियरिंग, और इसके अलावा बहुत सी एग्जांपल जो हैं वो हैं। तो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कैन वर्क इन मेनी फील्ड्स आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। सही हो गया। ठीक हो गया। अच्छा मिस्टर अहमद, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर विद द ऑडियंस अबाउट योर इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो आप सोचते हैं कि ये भी ऑडियंस को पता होना चाहिए बात। मेरे ख्याल से ये कि मैं वही बात करूंगा जो मैंने पहले की है, कि अगर आपने ये चीज़ ठान ली है कि यू हैव टू बिकम इंजीनियर, तो आप अपने अंदर एक इंजीनियरिंग वाला एप्टीट्यूड जो है वो आप डेवलप करना शुरू कर दें फ्रॉम द स्टार्ट। जो भी आपको लेसन्स पढ़ाए जाएं, टेक देम वेरी सीरियसली। और और ख़ास तौर पे जो लैब का काम हो उसको आपने बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है, क्योंकि मैंने ये खुद फील किया है कि मैं यूजुअली इन माय अंडरग्रेड आई वाज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स लैब वर्क। तो वो लैब में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की वजह से, प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की वजह से, खुद आगे होने की वजह से, उसका आज भी मुझे फ़ायदा हो रहा है। कि आज भी जो है मैं प्रोजेक्ट्स, मुझे सही। देर आर लाइक अ पीस ऑफ केक। समटाइम्स अगर आते हैं तो देवर लाइक अ पीस ऑफ केक, यार ये तो कुछ भी नहीं है, जल्दी हो जाएगा, ये मैंने इस पर ऑलरेडी काम किया हुआ है। चीज़ों की नो हाउ आपको अच्छी हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि लैब पे ज़रूर फोकस करें, और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप बार बार रिवाइज करते रहा करें, जो भी आप पढ़ें दिल से पढ़ें। और जॉब के मामले में बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करें, मेहनत करते रहा करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर जो है वो मदद करते हैं। आपने अपनी मेहनत को बिल्कुल नहीं छोड़ना। और दूसरा ये कि कोई भी फील्ड जो होती है उसके जो फर्स्ट 3 to 5 years होती हैं, तो दे आर बेसिकली वेरी डिफिकल्ट, और वो स्ट्रगलिंग फेज़ होता है। लेकिन वंस एक दफ़ा आप उस वाले फेज़ से निकल जाते हो, तो उसके लिए उसके बाद ऑब्वियसली आपका एक एक्सपीरियंस आ जाता है, और एक एक्सपीरियंस इंजीनियर की मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्थ होती है। बस स्टिक टू योर फील्ड, आपने डेविएट नहीं बिल्कुल। करना। आपने अपनी फील्ड के साथ जो है आपने स्टिक रहना है, उसी के साथ ही आपने रहना है। जो आपने करियर सोच लिया उसी के साथ रहना, आपको इंशाल्लाह ताला इसका ज़रूर जो है वो फल मिलेगा। अब मैंने जब ज्वाइन किया, मैंने जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आया था, तब भी कोई स्कोप नहीं था, उससे पहले भी इसी तरह की बातें थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई स्कोर्ड सिक्योर जॉब इन द फर्स्ट 3 months। मैंने पहले 3 महीनों के अंदर ही मैंने जॉब सिक्योर कर ली थी। तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दैट्स आप ग्रेट। मेहनत करते रहे, मेहनत और पेशेंस अपने साथ रखें, इंशाल्लाह ताला यू विल डेफिनेटली गेट इट। ऐसे ही। अच्छा, ये आपने बात की है वो लैब वाली। ये लैब वाला जो इशू है ना, ये सिर्फ आप ही की इंजीनियरिंग से एसोसिएट नहीं है, ये हर इंजीनियरिंग में ही ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा लड़के होते हैं, मतलब क्लास की अगर स्ट्रेंथ है 60, तो उसमें से 40+ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहते हैं से नो टू लैब। वो लैब की तरफ जाते ही नहीं है, पता चलता है ना कि लैब है, तो उधर से ही हॉस्टल की तरफ क्या है डायरेक्शन ले लेते हैं। तो जो वर्क कर रहे होते हैं लैब में, लेबोरेटरी में, सो वही बाद में क्या है जॉब को एलोकेट करने में कामयाब होते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो भी इंजीनियर हैं
जो भी उनकी फील्ड है, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, केमिकल या जो भी, तो उनको जब लैब में जाने का और एक्सपेरिमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ जाकर उसको ज़रूर अवेल करें, तो ये उनको वाकई बाद में बेनिफिट देगा। बिल्कुल 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 जी, ऐसे ही उनको बाद में इसका बहुत बेनिफिट मिलता है जो आप लैब के वक्त, क्योंकि आपके पास यही 4 साल होते हैं एक्सपेरिमेंट करने के, अपने आप को एवेल्युएट बिल्कुल करने के, अपने आप को पॉलिश करने के लिए। बाद में जब आप एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री में चले जाते हैं वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि आप अपने आप को मजीद शाइन कर सकें, ठीक है। तो आपने अपनी जो बिल्कुल ऐसे ही बेसिक्स है। हैं, आपका जो एक इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है, आपने अपनी बुनियादें जो है ना वो आपने अपनी अंडर ग्रेड में ही पक्की करनी होती बिल्कुल ऐसे ही है। है। सो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे जो हमने मिस्टर अहमद खालिद से डिस्कस किए हैं। सो दिस वाज ऑल आवर सेशन। सो आई वुड अगेन वांट टू थैंक मिस्टर अहमद खालिद दैट he joined this session and make it a charming session. So audience, stay tuned and stay happy. Thank you. And please subscribe to Concepto Chemistry on YouTube.